enjoying your quarantine time with your family. So stay safe, stay home, and I request to you, please subscribe our channel and press the bell icons so you will get the information about new videos. Based on the previous lecture, today we are discussed about the nomenclature of carbon compounds and allotropes of carbon compounds and their reaction. So first of all, we are discuss about the functional group. What is the functional group? The functional group, it is defined as the information of chemical nature. The information of chemical nature is decided by the functional group. The information of chemical nature is decided by the functional group. फंक्शनल ग्रुप की मदद से आप केमिकल बिहेवियर किसी भी कार्बन कंपाउंड का जान सकते हैं. तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स? Lots of carbon compounds is present in the organic chemistry, but we are discuss about the some functional group here. First of all, COOH functional group. The suffix is oic acid and their name is carboxylic acid. And suffix oic acid. Second one, OH alcohol and suffix is used all suffix is used for the alcohol functional group. Third one is ketone functional group. And for the ketone, suffix is used on. O-N-E, on. Fourth number is ester functional group. And the suffix is used for ester is ate. ATE, ester के लिए हम ate यूज करेंगे. Ester is obtained from the fruits. ये में कहां से मिलता है? फ्रूट में से मिलता है. जितने भी फ्रूट्स है वहां से हमें एस्टर मिल जाता है. तो lots of functional group here: COOH carboxylic acid, OH alcohol, C double bond O ketone, and last one is COOR ester. Now we are starting the nomenclature of carbon compounds. Nomenclature of carbon compound. For the nomenclature of carbon compounds, some limitations and some rules are decided by the IUPAC for the nomenclature of carbon compounds. The first rule is select the longest chain. Select the longest chain of carbon compounds. सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपका कार्बन कंपाउंड है उसमें से आपको क्या सिलेक्ट करना है, लॉन्गेस्ट चेन. कार्बन कंपाउंड की जो भी लॉन्गेस्ट चेन है वो आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना है.
Second thing, calculate the numbers of carbon, and based on the use suffix of carbon compounds क्या कहा? सेकंड थिंग, कैलकुलेट द नंबर ऑफ कार्बन. हम नंबर क्यों कैलकुलेट करेंगे? तो वी आर डिस्कस अबाउट द प्रीवियस लेक्चर. वी आर यूज द सफिक्स ऑफ फॉर द वन कार्बन इज मीट, 2 कार्बन ईट, 3 कार्बन प्रोप. So based on the number of carbon compounds, we are decide the suffix of carbon chain. So suffix is major, extremely used for the carbon compounds. Third one, select the main functional group. Select the main functional group. Main functional group here. इनमें से कोई भी functional group आपको कार्बन चेन में दिखेगा. Based on the functional group, we are select the suffix of the functional group based on this suffix. For example, COOH for carboxylic acid and its suffix is oic acid. Second thing, OH alcohol and its suffix is ol. So after based on the functional group, we get less numbers. We get less number of functional group. क्या कहा? तो लास्ट में क्या कहा मैंने? फोर्थ नंबर, बेस्ड ऑन द फंक्शनल ग्रुप वी गेट लेस नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप. फंक्शनल ग्रुप को हमें सबसे लेस नंबर देना है, उसके बाद ही हमें कार्बन चेन का नोमेनक्लेचर करना है. तो हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखेंगे. इससे पहले नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ये सारे रूल्स आप एक बार देख लो. ओके, so nomenclature of carbon compounds, we are used these rules, and now we are discuss about the nomenclature of carbon compounds. First example, for example, we write here ethanol. क्या लिखा मैंने? इथेनॉल. फॉर एग्जाम्पल, इथ, यहां पे देखिए इथ प्लस ओल, इथ प्लस ओल. तो हमें क्या पता चल जाता है? इथ का मतलब होता है इन द कार्बन चेन 2 कार्बन इज प्रेजेंट एंड देयर फंक्शनल ग्रुप इज ओल. ओल मींस अल्कोहल. सो वी राइट डाउन हियर CH3 CH2 OH, ethanol, CH3 CH2 OH. Second, CH3 CH2 CH2 COOH. Total number of carbon 1 2 3 and 4, but here one carbon
this carbon is a part of functional group and another 3 carbon is a carbon compound chain. So fourth rule, based on the functional group we get less number of functional group. फंक्शनल ग्रुप को हमें लेस नंबर देना है, तो हम शुरुआत कहां से करेंगे कार्बन चेन का, यहां से 1 2 3 and 4. तो what is the nomenclature of this carbon compounds is 1 2 3 4 carbon, so we are use ब्यूट. 4 कार्बन के लिए हम ब्यूट यूज करते हैं. उसके बाद फंक्शनल ग्रुप कौन सा है यहाँ पे, COOH. तो फंक्शनल ग्रुप COOH we are using for the COOH suffix is oic acid. So we are write down here oic acid. But what is the position of functional group here? It is a position is 1. So we are write down here butane 1 oic acid. Butane 1 oic acid. Otherwise common name is butanoic acid. तो ये थे इसके कुछ एग्जाम्पल. नाउ फिफ्थ rules. While suffix of functional group is beginning with vowel. वोवेल कौन कौन से है, A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. While suffix of functional group is beginning with vowel A, E, I, O, U. That time we dropped out E from the alkane chain. क्या कहा मैंने, while suffix of functional group is beginning with vowel, यानी कि हमारा जो ये फंक्शनल ग्रुप है, जो भी हमारा फंक्शनल ग्रुप है उसका सफिक्स अगर यहां से शुरू होता है वोवेल, यानी कि A, E, I, O, U से शुरू होता है, तो हमें कार्बन चेन जो अल्केन हमारी चेन है कार्बन चेन, उसमें लास्ट वाला जो E है उसको हमें ड्रॉप आउट कर देना है, यानी कि उसको हमें वहां से निकाल देना है. तो फॉर एग्जांपल हम देखते हैं अल्केन का ही कोई एग्जांपल ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ब्यूटेन प्लस ओइक एसिड. देखो यहाँ पे ब्यूटेन प्लस ओइक एसिड, इसका मतलब क्या होता है, ब्यूटेन प्लस ओइक एसिड. ब्यूटेन क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 कार्बन थे इसलिए मैंने लिखा है ब्यूटेन. तो ब्यूटेन प्लस ओइक एसिड. फिफ्थ वाला रूल देखिए क्या कहा था मैंने कि फंक्शनल ग्रुप अगर कहां से शुरू होता है वोवेल से, तो मुझे आगे का जो ई है वो मुझे ड्रॉप आउट कर देना है. तो यहाँ पे देखिए अब ये फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स कहां से शुरू होता है, ओ से, और ओ क्या है, वोवेल है. तो हम आगे का जो ये कार्बन चेन है, कार्बन चेन का जो ई लिखा हुआ है लास्ट में, उसको हम कर देंगे ड्रॉप आउट, उसको हम वहां से निकाल देंगे. तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन ओइक एसिड. ये ई मैंने यहां से निकाल दिया, तो ये देखो ब्यूटेन प्लस ये जोड़ दिया मैंने ओइक एसिड, तो ई कर दिया मैंने ड्रॉप आउट. तो ये सारे थे नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स के कुछ रूल्स और उसके कुछ एग्जांपल्स. Now we are starting new topic here. It is a allotropes of carbon. So first of all, what is mean by allotropes?
The definition of allotropes. Allotropes, it is defined as the compounds are made by single elements. क्या कहा मैंने? It is made by single elements. यानी कि जो भी कंपाउंड बना हुआ है उसमें कोई वो पूरा का पूरा किसी एक ही एलिमेंट से बना हुआ होता है. उसमें सपोज यहाँ पे मैंने लिखा है डायमंड, तो डायमंड में ओनली फॉर कार्बन ही होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है. तो ऐसे जो भी कंपाउंड्स होते हैं उसको हम कहते हैं एलोट्रोप. तो एलोट्रोप इट इज मेड बाय अ सिंगल एलिमेंट्स. डायमंड्स, सबसे पहले डायमंड्स के बारे में बात कर लेते हैं. डायमंड्स के बारे में आप सब लोग जानते हैं, पर डायमंड्स ये 3D स्ट्रक्चर होता है. डायमंड जो होता है वो 3D स्ट्रक्चर होता है. इन अ डायमंड, in a diamond only carbon is present. डायमंड में ओनली कार्बन ही होता है, कार्बन के अलावा कुछ नहीं होता है. उसके बाद डायमंड्स होता है हार्ड. डायमंड्स हार्ड होता है. और लस्टरस प्रॉपर्टी, लस्टरस प्रॉपर्टी का मतलब है वो चमकदार होता है. जब भी कोई उसके ऊपर लाइट गिरता है तो चमकने लगता है. उसके बाद ये एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन. उसके बाद दूसरा एग्जांपल है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन का ग्रेफाइट. ग्रेफाइट इज ए सेकंड एग्जांपल ऑफ एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन. ग्रेफाइट के बारे में आप सब लोग जानते हैं. ग्रेफाइट का आप लोग यूज भी करते हैं. हम पेंसिल का यूज करते हैं. पेंसिल के बीच में जो आप वो ब्लैक कलर का सब्सटेंस देखते हो पेंसिल के बीच में, वो होता है ग्रेफाइट. ये ग्रेफाइट कार्बन का एलोट्रोप्स है जो हम सभी लोग यूज करते हैं. तो ग्रेफाइट, इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो हेक्सागोनल होता है. हेक्सागोनल स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? यहाँ पे आप देख सकते हो. हेक्सा का मतलब होता है 6. तो यहाँ पे देखो 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 एंड 6. ये 6 कार्बन दूसरे 6 कार्बन के साथ नीचे जुड़े हुए हैं. तो इस तरह से ग्रेफाइट बनता है. और हाँ, दूसरी मेन बात ये है कि यहाँ पे बीच में कई बार कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी दिखने को मिलता है. और ठीक उसी तरह डायमंड में भी होता है. तो डबल बॉन्ड जिसमें प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड कंपाउंड. तो ये दोनों एग्जांपल डायमंड्स एंड ग्रेफाइट, ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के एग्जांपल है. तो ग्रेफाइट क्या होता है? हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है. उसके बाद उसकी एक प्रॉपर्टी है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है. इसका एक्सपेरिमेंट भी आया था प्रीवियस लेसन्स में कि जब आप कोई भी दो तार को पेंसिल के दोनों साइड जोड़ देते हैं और जब उसके दूसरे एंड पे बल्ब लगाते हैं और उसके बीच में आप कोई भी सेल डाल देते हो तो बल्ब जो होता है वो ग्लो होता है. क्यों? क्योंकि ये जो ग्रेफाइट होता है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाता है जिसकी वजह से वहां पे वो ग्लो होता है. तो ये था हमारा एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन. और अब एक बाकी है लास्ट वाला, वो है फुलरिन. ये फुलरिन जो होता है वो दिखने में, बकीबॉल उसको कहते हैं, वो दिखने में आपको फुटबॉल जैसा दिखेगा. दिस स्ट्रक्चर इज लुकिंग लाइक एज ए फुटबॉल. तो बकमिनिस्टर फुलरिन, ये इसका नाम बकमिनिस्टर फुलरिन क्यों पड़ा? तो इसका पीछे एक कहानी है, पर यहाँ पे मैं शॉर्ट में आपको कहता हूं कि एक अमेरिकन आर्किटेक्चर है जिसका नाम है फुलर, बकमिनिस्टर फुलर. तो ये जो बकमिनिस्टर फुलर है वो उसने डिस्कवर किया हुआ है. तो बेस्ड ऑन द आर्किटेक्चर, दिस नेम इज डेडिकेटेड टू दिस आर्किटेक्चर, बकमिनिस्टर फुलर. ये आपकी बुक में इसका फिगर ड्रॉ किया हुआ है, वहां पे आप जाके देख लेना. वही आपको फुटबॉल जैसा दिखेगा. नाउ
न्यू टॉपिक्स, कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम, पहले तो मैं आपको इसका सिंपल थिंग बता देता हूं कि ये क्या है कोल एंड पेट्रोलियम। तो कोल एंड पेट्रोलियम में कैसे बनता है, तो कई बार ऐसा होता है कि कोई भी ऐसी नेचुरल आफत आ जाती है, अर्थक्वेक आ जाता है, सुनामी आ जाती है, तो उसमें कई सारे एनिमल्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, ये सब मर जाते हैं। उसमें वो कोई भी ऐसी नेचुरल प्रोसेस की वजह से जमीन के नीचे दब जाते हैं। समुद्र हो तो समुद्र के नीचे अगर उसके बॉटम में कोई एनिमल्स मर गया है तो वहां पे वो जमीन के नीचे दब जाता है, उसके ऊपर कीचड़, माटी, पानी, वो सब कुछ उसके ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से वो जो डेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं कोल और पेट्रोलियम में। किसकी वजह से? क्योंकि वहां पे उसके ऊपर जो भी मरा हुआ कोई प्राणी है उसके ऊपर कितना सारा पानी होता है, उसका प्रेशर की वजह से और जमीन का टेम्परेचर की वजह से वो कन्वर्ट हो जाता है कोल और पेट्रोलियम में। तो अब सबसे पहले हम ये कोल और पेट्रोलियम के बारे में कुछ जानते हैं। तो कोल एंड पेट्रोलियम, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट्स आर crushed under the surface of soil because of earthquake and natural disaster। यानी कि कोई कुदरती आफत या फिर ऐसे अर्थक्वेक की वजह से ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो जमीन के नीचे दब जाते हैं। आफ्टर द मिलियंस ऑफ ईयर ड्यू टू द हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, डेड वेजिटेशन इज कन्वर्टेड इनटू कोल एंड पेट्रोलियम। बहुत लंबे समय के बाद, यानी कि लाखों करोड़ों सालों के बाद, ये जो मरे हुए अवशेष होते हैं, यानी कि ये जो भी रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं मरे हुए प्राणियों के, वो जमीन के नीचे दब जाने की वजह से वो कन्वर्ट हो जाते हैं कोल और पेट्रोलियम में। किसकी वजह से? ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, उसकी वजह से वो कोल और पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। कोल इज स्टार्ट्स कंबंशन विथ फ्लेम, बट आफ्टर sometimes it burns without flame because volatile compounds are totally comes out from the coal। ये आपने देखा होगा कई बार कि कोल जो होता है वो स्टार्टिंग में जब हम उसको जलाते हैं तो वो फ्लेम के साथ जलता है, पर बाद में वो फ्लेम धीरे धीरे कम हो जाता है और वो सिर्फ बर्न होता है रेड कलर जैसा। आपने देखा होगा कई बार जो चाय की दुकानें होती है आप वहां पे जाके देखते हो तो जो कोल होता है वो पहले फ्लेम के साथ जलता है, बाद में रेड फ्लेम के साथ ही, सिर्फ फ्लेम नहीं होती है पर सिर्फ रेड आपको जलता हुआ दिखता है कोल में। तो ऐसा क्यों होता है? तो बिकॉज volatile compounds are totally comes out from the coal। कोल के अंदर, कोल कहां से मिलता है हमें? ये डेड वेजिटेशन में से। फॉर समझ लो, सपोज डेड वेजिटेशन यानी कि कोई लकड़ी है जो सालों के बाद, करोड़ों सालों के बाद वो कोल में कन्वर्ट हो जाती है, तो कोल के अंदर एक वोलेटाइल गैस होता है। जब हम उसको थोड़ी सी आग देते हैं तो फ्लेम के साथ जलता है। जब कोल में से वो टोटली वोलेटाइल गैसेस कम्स आउट यानी कि बाहर निकल जाते हैं, उसके बाद वो कोल में कोई भी फ्लेम जनरेट होता नहीं है, वो सिर्फ बर्न होता है रेड कलर के साथ, उसमें से कोई भी फ्लेम आपको दिखने को मिलेगा नहीं। तो ये उसका एग्जांपल है कोल का कि वो क्यों स्टार्टिंग में बर्न होता है फ्लेम के साथ और उसके बाद क्यों फ्लेम उसमें दिखने को नहीं मिलती। लेट्स स्टार्ट न्यू टॉपिक, दिस इज कंबंशन। कंबंशन का मतलब क्या होता है? तो डेफिनेशन, कंबंशन इट इज डिफाइंड एज द बर्न्स विथ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। ऐसे कंपाउंड जब वो बर्न होते हैं तब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब बर्न होते हैं तब वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? हीट एंड लाइट, यानी कि बहुत सारा हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं। उस रिएक्शन को हम कहेंगे कंबंशन रिएक्शन। तो कंबंशन रिएक्शन का कुछ एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट एग्जांपल इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यस, ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज आल्सो द एग्जांपल्स ऑफ कंबंशन रिएक्शन। पहले ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं। Oxidation, it is meant by reaction in which oxygen is added or hydrogen is removed। Oxidation reaction का दो मतलब होता है। पहला
या तो रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड होता है या तो रिएक्शन में से हाइड्रोजन रिमूव होता है। ये दोनों जो भी रिएक्शन होता है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, या तो ऑक्सीजन ऐड होता है या तो हाइड्रोजन बाहर निकलता है। तो ऐसा ऑक्सीडेशन रिएक्शन के हम कुछ एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बन जाता है CO2 प्लस हीट। तो ये एग्जांपल किसका है, आप सब लोग इसके बारे में जानते हैं। कार्बन यानी कि कोल, कोलसा, चारकोल, और जब हम उसको बर्न करते हैं यानी कि जलाते हैं किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अब आपको क्वेश्चन होगा कि ऑक्सीजन कहां से मिलेगा, तो हमारे एयर में ऑक्सीजन होता है, तो एयर में ऑक्सीजन होता है और ये कार्बन जब जलता है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो CO2 यानी कि जो धुआं बाहर निकलता है वो CO2 का होता है, और प्लस हीट यानी कि हमें वहां पे टेम्परेचर जो कार्बन की वजह से टेम्परेचर मिलता है। उसके बाद दूसरा एग्जांपल है मीथेन CH4, मीथेन प्लस O2 यानी कि मीथेन को जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते तो हमें क्या मिलता है, तो H2O यानी कि वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट एंड लाइट यानी कि हमें एनर्जी मिलता है, और लाइट यानी कि वहां पे वो बहुत सारा फ्लेम यानी कि वहां पर लाइट दिखने को मिलता है। दूसरा है उसके बाद CH3CH2OH, इसका नाम है इथेनॉल। इथेनॉल यानी कि अल्कोहल। जब ये अल्कोहल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है यानी कि जलता है, तब हमें मिलता है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट एंड लाइट। और ये इथेनॉल जो होता है ये आप अगर इसका 1 ड्रॉप आप जैसे ही हाथ पे रखते हो तो अपने आप ही इवापोरेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ही कम है। उसका दूसरा यूज कहां पे करते हैं हम, जब कोई डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं उसके बाद जो वो जहां पे इंजेक्शन लगाया हुआ होता है वहां पे वो कोई भी कॉटन लेके वो एक लिक्विड में उसको डुबा देता है, बाद में यहाँ पे रखते हो तो वो ठंडा ठंडा लगता है, तो वो क्या होता है, अल्कोहल होता है यानी कि इथेनॉल होता है। तो ये इथेनॉल वहां पे यूज होता है। उसके बाद सेकंड एग्जांपल ऑफ कंबंशन रिएक्शन, इट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो पहले सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग होता है कि सपोज ये ए पेन है मेरे पास और दूसरी है मेरे पास बी, तो ए को मैं बी की जगह पे रख देता हूं और बी को ए की जगह पे, तो मैंने दोनों का क्या कर दिया, प्लेसमेंट चेंज कर दिया, डिस्प्लेसमेंट कर दिया, मैंने एक की जगह दूसरे को रख दिया, तो उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, तो उसका डेफिनेशन देखिए यहाँ पे, हाइड्रोजन ऑफ कार्बन चेन इज रिप्लेस, इस वर्ड पे खास ध्यान दीजिएगा, रिप्लेस बाय एनी फंक्शनल ग्रुप। कार्बन के चेन का जो हाइड्रोजन होता है उसको मैं रिप्लेस कर देता हूं किसी भी फंक्शनल ग्रुप से। तो ऐसी रिएक्शन जो होती है उसको कहते हैं हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या डिसाइड करती है, तो कि नेचर ऑफ कंपाउंड, जो भी नया कंपाउंड बनता है वो रिएक्शन जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो कंपाउंड का नेचर डिसाइड करती है। तो उसके कुछ एग्जांपल ले लेता हूं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे ये क्या है, प्रोपेन इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने प्रेजेंट है, 1 2 और 3। तो बेस्ड ऑन टोटल नंबर ऑफ 3 कार्बन वी आर डिसाइडेड द नेम ऑफ 3 कार्बन चेन, इट इज प्रोपेन। तो प्रोपेन यहाँ पे क्या होगा, इन दिस कार्बन कंपाउंड हाइड्रोजन ऑफ CH3 एटम, यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी CH3 है और ये भी CH3 है, ये दोनों में से कोई भी एक CH3 को आप पसंद कर लो और उसका कोई भी एक हाइड्रोजन उसको रिप्लेस कर दो आप, इज रिप्लेस्ड बाय OH फंक्शनल ग्रुप। ये दोनों CH3 है, उसमें से कोई भी एक हाइड्रोजन को आप रिप्लेस कर दो OH फंक्शनल ग्रुप से। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे देखो रिप्लेस किया हुआ है, ये CH3 को मैंने एज इट इज वैसे ही रखा है। यहाँ पे जो CH3 है उसमें से 2 हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन को मैंने रिप्लेस किया है OH से। तो यहाँ पे देखो ये CH3 CH2 CH2OH, यहाँ पे मैंने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया OH से। तो पहले इसका नाम क्या था, प्रोपेन। अब उसके बाद क्या हो गया, प्रोपेनॉल। प्रोपेन क्या बन गया,
प्रोपेनॉल बन गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये सब्स्टिट्यूशन हुआ यहाँ पे, ये जो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन थे उसमें से एक हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन हुआ। ये प्रोपेन था वो सिर्फ सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड था, अब ये क्या बन गया, अल्कोहल यानी कि प्रोपेनॉल बन गया। इसका नेचर भी अलग होता है और इसका नेचर भी अलग होता है। ये जो प्रोपेनॉल है ये अल्कोहल अल्कोहल समूह होने की वजह से वो अल्कोहलिक प्रॉपर्टी उसकी बन जाती है, और ये सैचुरेटेड अल्केन ग्रुप में आता है और ये अल्कोहल में आता है। तो ये था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।